First of all, I must thank to the Diyalbagh Society, because it's for me my first visit and a very good visit, where I'm going to meet so many of you, faculty from arts and faculty from education. So I think it's going to be a very good program. Rather, I should say it's a great initiative of this society to make our education joyful as well as value based. So let's appreciate the efforts of Diyalbagh Society with a big round of applause. Thank you so much. At present, we are focusing on experiential learning. Yeah? You know from where in our country we started with experiential learning? Anybody would like to answer that? From where did we start with experiential learning? Any example you remember when we talk of experiential learning? Somebody would like to share? I think it started from ashram system. So for us, it's not new. For Indians, experiential learning is not new. Holistic learning is not new. It's very old. It's in our roots. But gradually, because of so many invasions, which I'm not going to, because it was a boring subject when I was doing my B.Ed and M.Ed, talking of all the eras and times, how did we reach here. So I will not remind you of that. But you know what all went wrong, and education became isolated from life experiences. It was just in the textbooks. Even still, we find that it is in the textbooks. It was fragmented. Science alag hai, social science alag hai, bhasha alag hai, ganit alag hai. Tukde tukde ho gaya. So, what went wrong that education was fragmented like that? And today, again we are thinking on the same lines, when so much wrong has happened, that no, if we really want our children, our generations to learn, or we calling them educated or we calling ourselves educated, then we have to bring everything together again. It has to be holistic, it has to be experiential. And now the new names, which you are listening, especially the school teachers, competency-based learning and competency-based education. ऐसा क्यों हम इस तरह से सोच रहे हैं आज? क्यों ऐसे वर्कशॉप्स की या प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि जो हमारे बच्चों को हमने 100% मार्क्स लेने तक पहुंचा दिया है, जब उनको रियल लाइफ की सिचुएशन में हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि बच्चे अपनी नॉलेज को अप्लाई नहीं कर सकते. सो एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज इज़ नील. मेरा बच्चा 10वीं करने के बाद भी यदि उसको 500 का नोट हाथ में दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि कॉर्नर की दुकान से मैंने लिस्ट बना के दे दिया और ये कहा कि ये चीज़ें लेकर के आनी हैं, ही वोंट बॉदर. वन, दैट शॉपकीपर नोज. दूसरा, माँ ने 500 रुपये पकड़ा दिया. तीसरा, माँ ने ये भी बोल दिया, उस माँ को तो पता ही है कि 500 में ये चीज़ें आ जाएंगी, इसलिए लिस्ट भी है. तो वो ना तो उसमें देखेगा कितने की कौन सी चीज़ है, ना ये गिनेगा कितने का बिल बना. जो पैसा दे दिया आके, अच्छा है बच्चा, डिसेंट है, ज़्यादा इधर उधर खर्चा नहीं करने वाला है, तो पैसे ऐसे के ऐसे माँ को दे देगा. अदरवाइज़ वो अपनी जेब में है, जब माँ मांगेगी तो बताएगा कितने वापस मिले. अदरवाइज़ दे आर नॉट बॉदर्ड. ये अक्सर उन घरों में हो रहा है जहाँ पे बड़े बड़े स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, और जब वो सुबह माँ भेजती है तो उसे यही कह के भेजती है सब कुछ ध्यान से करना है. एंड मन में कहीं ना कहीं बच्चे को रोज़ ठूस भी रहे हैं और ख़ुद भी कह रहे हैं ही हैज़ टू टॉप. जैसे मेरे वाले एक डिग्री के साथ लिखा है टॉप, हालांकि दैट टॉप वाज नेवर 100%. वी वर सो हैप्पी विथ 73%. तो आज तो बच्चे को 93 मिलता है तो भी वो रोता है, वो कहता है कि मेरे से ऊपर लाखों हैं.
तो उसको जो प्रेशर है उसमें जाता है, जब लौट के आता है तो देयर आर नंबर ऑफ ट्यूशन्स लाइंड अप, उसको यहाँ जाना है, उसको वहाँ जाना है, उसे ये करना है, वो करना है. दिस इज़ ए नॉर्मल हाउस होल्ड रूटीन इन दिल्ली और इन मेट्रोपॉलिटन सिटी. आई एम श्योर दयालबाग इज़ डिफरेंट, बिकॉज ये एक ऐसी जगह है जहाँ वैल्यूज़ की बात होती है, जहाँ वैल्यूज़ पे भी ध्यान दिया जाता है. बट व्हाट आई एम टॉकिंग ऑफ अ जनरल सीन. और बच्चे को जैसे ही कोई तकलीफ़ आती है तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं? Are we really giving education or we are imparting literacy? I think we are more bothered in this kind of system, in this kind of schools, what I am talking about, or which I am talking about. उसमें क्या हो रहा है? लिटरेसी दी जा रही है, पढ़ना, लिखना, अर्थमेटिक करना, गणित करना. अच्छा आ गया तो 100% तक पहुंच जाएंगे. वैल्यूज़ जिसकी आप बात कर रहे हैं, लाइफ स्किल्स जो हम देना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस एंड पर्सनैलिटी, होलिस्टिक पर्सनैलिटी की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस पर तो हम वहाँ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं. तो यदि वो हम नहीं कर रहे हैं तो आवर सोसाइटी इज़ गोइंग टू डॉग्स. वी आर इन टू दैट लाइन. स्पेशली हमारा स्कूल सिस्टम, हम क्रिएट कर रहे हैं वैसे डॉग्स जो एक दूसरे को मारने पे, चाहे पॉलिटिक्स में है तो वो आप देख ही रहे हैं सीन अपने रोज टीवी सेट पे. वी आर नॉट लेस देन डॉग्स. रादर वो किसी रीज़न से भौंकते हैं, हम तो कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिसका कोई पर्पज़ ही नहीं है. एंड इफ़ यू सी इन द सोसाइटी सोशल सिस्टम, वेदर इज़ फैमिलीज और इज़ द नेबर्स और ऑन द रोड रेज के नाम पे, आप देखिए सुबह से लेकर शाम तक हमें क्या क्या भुगतना पड़ता है. एंड हु इज़ द क्रिएटर? वी. तो ये जो प्रश्न चिन्ह लगता है कि एजुकेशन में और लिटरेसी में क्या अंतर है और हमारे स्कूल क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, तो वहाँ पे बात आती है होलिस्टिक लर्निंग की, जिसमें वो सब है जिसकी बातें हम करेंगे. आपका सेशन बहुत ही बढ़िया नोट पे शुरू हुआ, जहाँ इतनी अच्छी प्रेयर गाई गई. सुरीली तो थी ही, शब्द बहुत अच्छे थे, पर मैं स्कूलों में जब जाती हूँ मैं देखती हूँ बच्चे हिलते और भगवान का नाम ले रहे हैं और वहाँ से लेके जनगण मन तक वो गा रहे हैं, पर मन से कोई नहीं जुड़ा है, सब खाना पूर्ति के लिए होता है. तो यहाँ मैं इंटीग्रेशन की यदि बात करूँ तो जो बच्चे गा रहे हैं उसको कैसे महसूस करें, ये है होलिस्टिक एजुकेशन. यदि हम जो गा रहे हैं उसके साथ जुड़ते नहीं हैं तो वो होलिस्टिक नहीं है, एक्सपीरियंशियल नहीं है. आई एम जस्ट गिविंग यू सिंपल एग्जाम्पल्स सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट बिग वी आर टॉकिंग. वी आर नॉट टॉकिंग बिग, वी आर जस्ट सेइंग कि जो हम कर रहे हैं उसके साथ जुड़ जाएं, उसे जीना शुरू कर दें, सो दैट रिफ्लेक्ट्स इन आवर बिहेवियर. और शायद यदि स्पिरिचुअलिज्म की या मेडिटेशन की हम थियरी में जाएंगे तो उसमें यही कहा जाता है जो पल में हम खड़े हैं या जी रहे हैं उसको सच में जिएं, उसके साथ जुड़ पाएं. तो इट्स सो सिंपल. आवर एजुकेशन शुड बी दैट. अदरवाइज हम किस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं? पर माहौल जो है वो ऐसा बन गया कि हम जो दे रहे हैं वो नंबरों के लिए दे रहे हैं. और नंबर किस लिए ले रहे हैं? फॉर ए बिगर पैकेज. आज आपके बच्चे को या आपको तोला जाता है कितना बड़ा पैकेज है. उसी क्वालिफिकेशन का या उससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन का बच्चा यदि स्कूल एजुकेशन को चुनता है तो उसके पैकेज को कोई अप्रिशिएट नहीं करता, इंक्लूडिंग पेरेंट्स. तो हम हैं क्या क्या कर रहे हैं? ये शायद इसीलिए हो रहा है कि हमने कभी एजुकेशन को, हमें देने वालों ने और हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे सिस्टम में, उन्होंने एजुकेशन को एजुकेशन की तरह से नहीं लिया. सो नाउ आफ्टर द आश्रम सिस्टम एंड बुनियादी शिक्षा, वहाँ तक चीज़ें ठीक रहीं बुनियादी शिक्षा तक. अब हम दोबारा उसी मोड़ पे आ गए हैं. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करता है और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को लेकर के पूरा हमारा करिकुलम बना. और जब उस करिकुलम की बात करें तो उसमें एक विषय जोड़ा गया, कला शिक्षा या आर्ट एजुकेशन, जिसकी फिलॉसफी में और करिकुलम में ये लिखा गया कि कला शिक्षा के दो रूप हैं. एक है कला शिक्षा एज अ सब्जेक्ट, जो मेरे साथी यहाँ म्यूज़िक और फाइन आर्ट्स में विजुअल आर्ट से रिलेटेड हैं.
जो वो करके आए हैं, दैट इज़ आर्ट एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट। विमल बैठे हैं, दिस इज़ आर्ट एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट। नाउ दूसरा और जो इम्पॉर्टेंट हिस्सा जिसकी हम यहाँ बात करेंगे, लगातार 4 दिन तक उससे जुड़े रहेंगे, वो है आर्ट्स अक्रॉस द स्कूल करिकुलम। यानी कि यदि शिक्षा को ठीक ढंग से पाना है या बच्चों को शिक्षा देनी है या एक्सपीरियंशियल लर्निंग देनी है, तो आर्ट्स इज़ द बेसिस ऑफ एजुकेशन। यू कैन नॉट डू इट विदाउट आर्ट्स। यहाँ तक मैं क्लियर हूँ अपनी बात कहने में, या इज क्लियर? ओके। तो यदि हम ये कर रहे हैं तो फिर आर्ट अलग से और शिक्षा अलग से क्या कर रहा है? और कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि केवल नर्सरी के बच्चों के लिए थोड़ा आर्ट का काम, वहाँ पे भी आजकल सॉफ्ट टॉयज़ आ गए हैं जो किसी और ने बनाए, कंपनियों ने बनाए। जो हमारे एजुकेशनल टॉयज़ थे दादी नानी वाले या झूले थे, वो ख़त्म हो गए, मोबाइल्स ख़त्म हो गए। अब हम लोगों के घरों में भी वही सब आने लगा है जो वो मार्केट से चाइना, वो भी चाइनीज़ नॉट इंडियन, क्योंकि दैट इज़ चीपर, दैट इज़ कलरफुल, दैट इज़ वेरी सॉफ्ट और इजीली गांव से लेके अर्बन एरिया तक मिलता है, तो वो हम लोग ढेरों ले आते हैं। और बच्चा उससे खेलना भी नहीं चाहता है क्योंकि बच्चे को इतनी अबंडेंस हो गई है, इतना मात्रा ज़्यादा हो गई है कि मिठाइयाँ इतनी पड़ी हैं आपका देखने को मन नहीं करता। तो जो पर्पस था टॉयज़ का, जो कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव के साथ हम जोड़ते थे, ख़त्म। द मोमेंट चाइनीज़ टॉयज़ कम इनटू, या कारें और वो बारबी डॉल्स आपके घरों में आ गई, तो वो जो गुड़िया की कहानी या गुड़िया के ऊपर इतनी कविताएं होती थी, वो बारबी के साथ कब पूरी होंगी? बारबी के तो बाल भी हमारे जैसे नहीं हैं, बारबी की तो ड्रेस और कमर भी हमारे जैसी नहीं है, वो तो कुछ और ही है। तो मेरा बच्चा वो बारबी से कैसे जुड़ सकता, कैसे कविता करेगा? हम लोग इतना आर्टिफिशियल उसमें चले गए और फ्रेगमेंटेड साइड में चले गए हैं कि शिक्षा जो है वो नर्सरी से लेके हायर एजुकेशन तक बेसलेस है। सो लेट्स मेक इट कंप्लीट, होलिस्टिक थ्रू एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर हम बात करेंगे और उसमें फोकस रहेगा आर्ट्स अक्रॉस द स्कूल करिकुलम। एक बात इसके साथ और क्लियर करना चाहूँगी, जो मोस्टली हमारे टीचर्स को बीएड में कराया जाता है, वेयर मोस्ट ऑफ द टाइम वी टॉक ऑफ टीचिंग एड्स। व्हेन वी टॉक ऑफ education as learning process, I place myself nowhere in teaching aids. I am rather against teaching aids. Who prepares teaching aids? Teacher. So whose experiential learning it is? Teachers. Where are the students? If it is a child-centered approach, if it is learner-centered approach, if it is experiential learning, then though it should be done by the children. And if it is done by children, then we really do not need teaching aids. We need learning resources. At the most, if you want to say, you say teaching learning resources. So we will nowhere consider art कि जैसे वो कुछ बना लिया टीचर ने, उसका एक काम हमने और बढ़ा दिया कि क्योंकि अब तुम्हें आर्ट्स इंटीग्रेट करना है तो पहले गाना सीखो, पहले नृत्य सीखो, पहले पेंटिंग सीखो, फिर क्राफ्ट सीखो, कुछ बनाओ, फिर कक्षा में जाओ। तो हम श्योर हैं, आप तो शायद दयालबाग सोसाइटी हैं तो आपके टीचर शायद कुछ कर भी लें, पर जिस तंत्र से मैं जुड़ी हूँ, सरकारी तंत्र, जहाँ मैं अर्बन और रूरल में जाती हूँ तो ट्राइबल एरिया तक जाती हूँ और देश के उन हिस्सों में देख रही हूँ जहाँ पे एक टीचर पहली से पाँचवीं तक के बच्चों को इकट्ठे बिठा के एक कमरे में, जिसे आप कहते हैं किताबों में मल्टीग्रेड टीचिंग, वो कर रहे हैं। क्या कराएंगे? और उसके पास कुछ भी नहीं है। हम आईसीटी के यूज़ की बात कर रहे हैं 21st सेंचुरी स्किल्स में, और वहाँ बिजली ही नहीं है। मैं देख के आई हूँ पिछले ही महीने उन स्कूलों को अपने डायरेक्टर के साथ। तो वो बड़ा ही ऐसी बात होगी कि रियलिटी से दूर। तो हम लोग जो यहाँ बात करेंगे वो आर्ट्स को एज एक्सपीरियंस लेंगे, ना कि एज टीचिंग एड, बिकॉज टीचिंग एड एंड्स विद टीचर्स
और उसके बहाने वो थोड़ा बहुत, ये ठीक है कि कुछ दिखा के जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों को थोड़ा ज़्यादा देर तक याद रहता है, बट जब वो एक्सपीरियंस करते हैं तो वो परमानेंट लर्निंग हो जाती है। नाउ फ्रॉम हियर लिंकिंग यू टू द 3 पिलर्स ऑफ एजुकेशन, जिसे हम लोग कहते हैं कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारा फोकस है, अफेक्टिव डोमेन। जब तक ये तीनों डोमेन आपस में मिल कर के किसी ज्ञान को अर्जित करने का काम नहीं करेंगी, तब तक हमारे बच्चों की मेमोरी जो है वो शॉर्ट मेमोरी रहेगी, यानी कि एग्ज़ाम के आसपास फिर रट्टा मारना पड़ेगा, एक बार नहीं कई कई बार देखना पड़ेगा, तब जाके वो 100% आते हैं। वो ऐसी मेमोरी में नहीं है जहाँ उसके आधार पे उन्हें कुछ भी करना पड़े तो दोबारा उसके लिए किताब ना पढ़नी पड़े। ऑफ कोर्स डेट्स एंड ऑल और नेम्स ऑफ द एजुकेशनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर्स, सोशियोलॉजिस्ट, वो एक अलग बात है, वो हम देख सकते हैं क्योंकि हो सकता है हमें नाम याद ना रहे पियाजे को छोड़ करके, बट बाकी जो उसमें ज्ञान है वो तो हम लोगों को रोज काम आता है। तो बच्चों को यदि गणित को भी रट्टा लगाना पड़े तो वो कब इफेक्टिव डोमेन का हिस्सा बना? सो वी नो दैट आवर होल एजुकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन कॉग्निटिव, एंड कॉग्निटिव भी फुली नहीं है, बिकॉज इफ यू वांट टू मेक इट फुली कॉग्निटिव देन यू नीड 2 others, नहीं तो वो टिकेगा ही नहीं, वहाँ पे उसका आधार नहीं होगा, वो ऐसे ऐसे होता रहेगा और आपको हाथ लगा के बारी बारी उस शिक्षा के हिस्से को जोड़े रखना पड़ेगा। जैसे ये हाथ हटे आप किसी और काम में लगे, वो हमारी शॉर्ट मेमोरी से गायब हो जाएगा। नाउ उसे परमानेंट मेमोरी में कैसे रखा जाएगा? एक्सपीरियंशियल लर्निंग से। और एक्सपीरियंशियल में ये तीनों चीज़ें कैसे जुड़ती हैं? फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ विमल बैठे हैं, क्योंकि विमल का मैंने आर्ट वर्क बहुत देखा है तो मैं उसी की आर्ट का उदाहरण दूंगी। उसके पास उसका कैटलॉग भी है विच कैन बी शेयर्ड एंड ही कैन शो इट टू अदर्स। ही इज़ नेचर पेंटर और मोस्टली फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में भी ऐसे हिस्से जहाँ से कोई ना कोई रास्ता जा रहा होता है, जैसे आप किसी जंगली रास्ते पे खड़े हैं या पुराने किसी गांव, बहुत ही ऐसा गांव जहाँ शहरों की हवा ज़्यादा नहीं लगी है, वहाँ खड़े हैं। तो वो जब उसे पेंट करता है, हम उस पेंटिंग को देखते हैं, तो मैं एक चीज़ दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये कॉपी भी यदि करी जाएगी पेंटिंग तो भी उसको उसमें, हालांकि वो कॉपी नहीं है, वो कभी कॉपी नहीं करता है, ही गोज़ टू दोज एरियाज एंड देन ही क्लिक्स, समटाइम्स ही पेंट्स देयर, समटाइम्स ही डज इन हिज स्टूडियो। पर जो वो एक ही रास्ते पे 3-4 तरह की अलग अलग पेंटिंग में धूप या छाया दिखाता है, मॉर्निंग में उस लैंडस्केप को देखते हैं तो कैसा है, शाम को देखते हैं तो कैसे होता है, इसमें क्या है? कॉग्निटिव भी है। ही इज ऑब्जर्विंग पीपल फ्रॉम द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यू ऑल नो दैट ऑब्जर्वेशन इज पार्ट ऑफ कॉग्निटिव। ही थिंक्स, थिंकिंग इज पार्ट ऑफ कॉग्निटिव। He explores, experiments with the colors to match. This is cognitive again. He creates. Creativity is high level of cognitiveness. Okay? So cognitive. Now, unless he puts himself into that, unless he feels the sun, unless he feels the dust, unless he feels the dusk and the dawn, he cannot paint. So it means he has experienced effective part of it, and when he is painting, the way he is putting his body into that, उसमें cognitive से शुरू हुआ और effective पे end हुआ। और आर्टिस्ट क्या करते हैं, आर्ट वाले और म्यूज़िक वाले सब समझेंगे, और आप भी जो बैठे हैं, ये नहीं कि आप आर्टिस्ट नहीं हैं, अच्छी से रंगों में कॉम्बिनेशन में जब हम साड़ी पहनते हैं या शलवार कमीज़ पहनते हैं या सजते हैं, मेल पगड़ी बांधते हैं, शादी के लिए तैयार होते हैं, कुछ भी पहनते हैं, तो हम लोग शीशे के सामने जा जा करके खुद को अप्रिशिएट करते हैं, देखते हैं, 100 तरह से अपने आप को निहारते हैं। और आर्टिस्ट वही काम करता है। आर्टिस्ट अपने काम को कंप्लीट करने के बाद कई बार कई दिनों तक, घंटे नहीं कई दिनों तक आते जाते निहारता है, ये देखता है, उसका आनंद लेता है। बाहर वाले तो जो लेंगे लेंगे, आनंद लेता है, और उसमें बारी बारी ये देखता है कहीं और तो नहीं कुछ करने की ज़रूरत।
Now, the person who has done this knows about the forest, knows about the trees, knows about the climate and weather, knows about the object properly, उसकी branches, उसका पत्ते कैसे हैं, तभी तो एक पेड़ दूसरे से अलग दिखता है. Now this is called holistic. Suppose you are telling your children about the forest. Let them paint, let them move as trees with the drama. हम लोग जो थिएटर इन एजुकेशन करते हैं या ड्रामा इन एजुकेशन करते हैं, बच्चों को हम ये कहते हैं जस्ट इमेजिन, क्लोज योर आइज एंड इमेजिन योर सेल्फ एज वन ऑफ द ट्रीज विच यू लाइक, एंड नाउ जस्ट फील दैट इफ यू आर दैट ट्री हाउ वुड यू स्टैंड. एंड देन बच्चे ना आंखें बंद है, क्योंकि देखेंगे तो एक दूसरे को कॉपी करेंगे, पर आंखें बंद थी, यहाँ भी हम करेंगे तो आप देखेंगे अपने फोटोग्राफ्स में हाउ डिफरेंट यू लुक. आप सारे अपने अपने तरीके का पेड़ बनेंगे. नाउ यू आर थिंकिंग what you have observed long back and you are trying to perform through your body, and when you perform you will, and then we say write 5 lines about your experience. How do trees feel? Which tree it was? What were the colors around? And then second exercise could be, अच्छा जब आंधी आती है, जैसी आंधी आजकल आ रही है, तो इन ट्रीज को कैसा लगता होगा. Close your eyes again and feel. And then they write 10 lines. Then you say, it's night, everybody has slept, we are all at home. How does your tree feels? You will see that your children have started doing creative writing. Language is there because the whole cognitive is there. वहाँ से आप उनको कहाँ तक लेके जा सकते हो, जो हमारी टेक्स्ट बुक्स और हमारी क ख ग की या कुछ लाइनें इस पे लिखनी है, ये प्रस्ताव लिखो, ये पत्र लिखो, ये गद्य लिखो, पद्य लिखो, कोई भी नहीं पूरा कर सकता. सो व्हाट इज कॉम्पिटेंसीज? कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, दिस इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग विच वी आर टॉकिंग इन आवर लर्निंग आउटकम्स, जहाँ हम ये कहते हैं कि बच्चा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में, अभी तो मैंने एक पेड़ की बात करी और मैं अपने अनुभव की बात कर रही हूँ, आपको अनुभव कराया नहीं, पर आई एम 100% श्योर दैट मोस्ट ऑफ यू आर कनेक्टिंग टू सर्टन पार्ट ऑफ दैट. दिस इज व्हाट एजुकेशन एट एलिमेंट्री लेवल शुड बी. आई से दैट इट शुड बी थ्रू आउट. उसके बिना मज़ा ही नहीं आता. रादर जितने हम बड़े होते हैं उतना ही अनुभव की और ज़रूरत होती है लर्निंग के साथ जोड़ने की. बट फॉरगेट अबाउट द हायर एजुकेशन. थिंक ऑफ स्कूल एजुकेशन, टीन एज और चिल्ड्रन. वी ऑल नीड इट. दैट इज़ वेयर म्यूजिक, डांस, थिएटर एंड विजुअल आर्ट कम. That's what we will be doing, and we will be dividing certain experiences with the icebreakers. मुझे पता है कि नंदिता जी ने कुछ किताबें भी ऐसी मंगवा ली थी, शायद वहाँ से हमारा पैकेज भी आया हुआ है, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग जिसमें हिस्सा है, आर्ट्स भी उसमें हिस्सा है. समय हो तो उसमें आइस ब्रेकर पहला मॉड्यूल है. यदि आप चाहते हैं कि आप किसी भी लेवल के टीचर हो और आप बच्चों को या लर्नर को जागृत अवस्था में रखना चाहते हैं, जो मैं भी रखना चाहती हूँ, तो मुझे अपना बोलना कम करना पड़ेगा या रोकना पड़ेगा, तो उसके लिए आइस ब्रेकर्स की ज़रूरत होती है. बिकॉज इन लर्निंग साइकोलॉजी जो कहा जाता है, जो हम सब पढ़े भी होंगे, और आगे आगे वो स्पैन और कम हो जाता है. जब मैंने बीएड किया था तब बात होती थी कि लर्नर का 15 मिनट का एक पीरियड होता है, 15 मिनट का स्पैन होता है. यदि कोई बहुत अच्छा व्यक्ति जिसकी आवाज़ भी अच्छी हो, जो अपनी बॉडी को भी एक टूल की तरह से यूज़ कर रहा है, वॉइस मॉड्यूलेशन करता है, सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना सकता है, लर्नर की भाषा में बात करता है, तो 15 मिनट तक हम हमारे सामने बैठे लोगों को अपने साथ जोड़े रख सकते हैं. मैं कितना भी प्रयास करूं या ड्रामा करूं कि मैं बहुत अच्छी फैसिलिटेटर हूं, आपको 12 मिनट से ज़्यादा अपने साथ नहीं रख सकती हूँ. ये आज के आंकड़े हैं कि कितना ही अच्छा व्यक्ति यहाँ खड़ा हो क्लास में, 12 मिनट से ज़्यादा उसकी औकात नहीं है लर्नर को अपने साथ लेके चलने की. आप ऑटोमेटिकली, बिकॉज दिस इज़ हाउ वी आर. चंचल, मैंने पेड़ की बात करी, आप पेड़ से एक पेड़ पे पहुंच गए, मैं बोलती रही, मैं अपनी बातें सुनाती गई, आप तो पहुंच गए गांव,
आप तो पहुंच गए मैंगो ट्री के पास, हो सकता है कोई बरगद के पास पहुंच गया, हो सकता है किसी ने सोचा मेरे घर के आसपास तो सफ़ेदा ही लगा है, कोई सोचे अरे हमारे यहाँ तो झाड़ियाँ ही हैं, कोई सोचे हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सब काट डाले, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, पेड़ भी देखने कहाँ जाए, हमें तो फिल्मों में दिखेगा, सीरियल में दिखेगा या नेट पे दिखेगा। मैं बला 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 कर रही हूँ, आप चले गए एक और जर्नी पे, विच इज़ लर्निंग, बिकॉज आई गेव यू दोज ब्रांचेस टू क्लाइम ऑन एंड नाउ यू क्लाइम्ड, यू आर गोइंग। So what I need to do, after every 12 minutes, I should involve you, I should involve the learner. I should give some activity which we call icebreakers, so that you all get up, you all experience, and then we go further. So I think that is the time. Let's take a break for an icebreaker. Put down all your things you have in your hands, कुर्सी पे रख दो और आप अपनी जगह खड़े हो जाओ। हम लोग एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे जो कि 2-3 मिनट की होती है, एंड एनीबडी कैन डू, बिकॉज इसमें डांस ज़्यादा नहीं है, इसमें म्यूज़िक बहुत छोटा छोटा है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू फॉलो दिस कि अपनी 5 उंगलियां हैं, ये एक हाथ आप जिस पे भी आप लेफ्टी हो तो राइट को करोगे, नहीं तो ये जो भी आपको कंफर्टेबल है। आप पहले एक उंगली से, व्हेन आई से क्लैप विद 1 फिंगर, आप 1 से करेंगे, मैं कहूँगी 2, आप 2 से शुरू कर देंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, और उसका स्पीड तेज रहेगी, जैसे धीरे 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 नहीं, डा 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 डा। फिर मैं कहूँगी 4, फिर आप 4 से करेंगे, 3 2 1, और आंखें आपकी बंद होनी चाहिए। जस्ट एंजॉय द साउंड, कैसी साउंड निकलती है, एंड ट्राई टू connect yourself to that sound where you have heard that kind of sound. So kindly close your eyes, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद करेंगे तो मज़ा ज़्यादा आएगा। एंड नाउ वी स्टार्ट क्लैपिंग विद 1 फिंगर, एक उंगली से जोर से, फास्ट, 2 3 4 3 2 1 3 5 4 3 fast 2 1 and stop gradually. Thank you so much. Sit down, please. It was raining. It was raining. और जब हम इसे असेंबली में करते हैं मॉर्निंग में, तो बच्चे इंजॉय करते हैं, और हमारे लिए ये सिर्फ आइस ब्रेकर है, जिसमें ये क्या किया कि जो हमारा एक ऐसे सिलसिला चला जा रहा था, मैं इलास्टिक को खींचे जा रही थी, उसको हमने धीरे से छोड़ दिया, साथ में एक ऐसा एक्सपीरियंस दे दिया जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। विद द बॉडी वॉज इन्वॉल्व, they were listening to the sound, and I was changing number. You can make it interesting by changing the number. No, एकदम 5 से 1, 1 से 5, 1 से 4. They should not know what you are going to, मतलब उसको इतना सिंपल ना बनाओ कि उसे पता है 1 के बाद 2 ही आना, 2 के बाद 3 ही आना, because children really like challenge. जितना challenge उतना मज़ा, तो वो हमने कर दिया। And after that, now if we want to talk on water, we want to talk on disaster based on water, तो वो चाहे फैनी का हो, चाहे वो सुनामी का हो, चाहे वो पानी की कमी की बात हो, पानी की साइकिल की बात हो, उसको आप कहीं तक भी जोड़ के ले जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने उसके बाद क्या देना है। फॉर एग्जाम्पल, बीच में टेबल लगा होगा, दे विल सिट अराउंड एंड दे विल कीप ऑन टॉकिंग एंड डूइंग थिंग्स, तो दे विल एंजॉय दैट। तो हम लोग इसके साथ अब ये कहेंगे कि नाउ क्लोज योर आइज फॉर हाफ अ मिनट, एंड देन आई विल से फ्यू थिंग्स कि आप एक गांव में हैं या आप एक बस स्टैंड के ऊपर हो, ज़ोर से बरसात आनी शुरू हो गई, लोग भाग रहे हैं,
फिर मैं चुप हो जाती हूँ। जस्ट एक्सपीरियंस, आप उसमें क्या कर रहे हैं जब इतने जोर की बरसात हो रही है, लोग भाग रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, और आपकी आंखें बंद है, आप इमेजिन कर रहे हैं, जो आपने ऑब्जर्व किया है उसके साथ इमेजिनेशन जुड़ के यू फाइंड ए प्लेस फॉर योर सेल्फ। उसके बाद मैं ये कहती, नाउ क्वाइटली यू विल जस्ट ड्रॉ दैट सीन, देन दे डू दैट एंड देन वी टॉक। एंड इतने, और हर एक कोई ऐसा नहीं होता है हम सब में जितने यहाँ बैठे हैं आर्ट की फैकल्टी को छोड़ के जो ये कहे कि हमें ड्रॉ करना नहीं आता। आप सब ने किया हुआ है। हम तो उन बच्चों को जिनको और कुछ नहीं आता टॉयलेट में जाके गंदी अच्छी बातें लिखते हैं और चित्र बनाते हैं गंदे से लेके अच्छे तक सारे, उनको भी ड्राइंग आती है। जिन्होंने पेड़ों के ऊपर लिखना है, हमारा आर्किटेक्चर ख़राब करना है, जा कर के हिस्टोरिकल साइट्स ख़राब करनी है, आपके यहाँ आसपास बहुत हैं, उनको भी ड्राइंग आती है। तो किसको नहीं ड्राइंग आती? वी आर बॉर्न विद दैट एबिलिटी। वी ऑल कैन ड्रॉ, वी ऑल कैन मूव, वी ऑल कैन डांस। एंड ड्रामर तो हम हर रोज करते हैं, घर से लेके स्कूल तक, कॉलेज तक एंड बैक। सो वी ऑल लिव आर्ट्स। ओनली थिंग इज व्हेन इट कम्स टू फॉर्मल, तो हमारे मापदंड है, वहाँ पे ही देखा जाता है इसकी ड्राइंग अच्छी है इसकी नहीं, जो यहाँ नहीं देखा जाएगा। सो वी विल डू द ड्राइंग काइंड ऑफ थिंग ऑल्सो, जहाँ आप कुछ बनाएंगे और फिर उसके ऊपर भी चर्चा होगी और हम ये बोलेंगे कि अब जो आपने ये किया, जैसे ये एक्टिविटी करी और इसके बाद हमने एक ड्राइंग की एक्टिविटी कर ली। नाउ वी से कि इस एक्सपीरियंस को पहली से 5वीं तक कहाँ कहाँ जोड़ा जा सकता, भाषा में कहाँ जोड़ा जा सकता है। हो सकता है किसी ने पानी से नाव तक की बात सोच ली, कि जैसे जगजीत सिंह जी ने कश्ती के ऊपर जो गज़ल गाई है, आप उसको सुनते हैं तो यदि आपने कश्ती नहीं भी चलाई है तो मन होता है कि कोई किसी की चलाई हुई पानी पे कश्ती, कागज़ की कश्ती ज़रा देखें, या कोई ऐसा स्मरण हो जाता है कि हमने भी देखा था, खुद तो नहीं चलाई पर भैया को चलाते देखा है, क्योंकि लड़कियां कश्ती कम चलाती थी हमारे टाइम में, चोरी से चला लेते थे, नहीं तो ये कि ये भैया का काम है खेलने का, हमारा काम किचन का है। तो वो सब जो हमारे अनुभव होते हैं उनको जोड़ करके यू कैन टेक इट टू द लिटरेचर, यू कैन टेक इट टू EVS, जहाँ पानी के ऊपर, वर्षा के ऊपर एक से ज़्यादा, यानी कि मैं पीछे एक्सरसाइजेस लिख रही थी, देर आर 6 यूनिट्स ऑफ प्राइमरी विच आर डायरेक्टली लिंक टू वाटर एंड रेन। तो आप एक एक्सपीरियंस करा के इतने एरियाज़ की बात करके और बाद में उस लर्निंग को इंटरेस्टिंग एंड होलिस्टिक बनाने का काम कर सकते हैं। सो आई थिंक आई विल स्टॉप हियर, वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग सच थिंग्स, क्योंकि जब हम ऐसी बातें करते हैं तो ये तो कहना ना भी कहूँ तो भी आप सबको समझ आता है कि जो हमारी सोशल इंटेलिजेंस है या सोशल इमोशनल डेवलपमेंट है वो सारी इन एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ी हुई है। बिकॉज व्हेन यू आर अलोन एंड यू आर डूइंग इट अलोन, आप अकेले लिख रहे हैं, अकेले सोच रहे हैं, अकेले पढ़ रहे हैं, तो वो ट्यूशन टाइप हो जाता है, लिटरेसी टाइप एक्टिविटी हो जाता है। बट व्हेन वी आर टुगेदर, व्हेन वी आर गिविंग टाइम एंड स्पेस टू आवर चिल्ड्रन टू टॉक, टू डिस्कस, टू शेयर, तो उनमें लीडर भी हम बदलते रहते हैं, फॉलोअर्स भी बदलते रहते हैं, टीम वर्क होता है, कोऑपरेशन होता है, बॉन्डिंग होती है, कंपैशन होता है, इतना सब कुछ है कि सारी सोशल इंटेलिजेंस एंड सोशल इमोशनल डेवलपमेंट जो हमारे स्कूल में, क्लासरूम में घटती जा रही है, घर में तो घट ही गई है, वो सारी आप केवल आर्ट को इंटीग्रेट कर देने भर से बच्चों को एरिया ओपन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।